Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The brother who, for the English, they should move to my left on the back side. The brother will be translating in English. The brothers who want English translation, they can brother move towards my left in the back corner over there, inshallah. Jazakallah khair. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزني وأوجز فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک بہت چھوٹی سی کہانی جو حدیث پاک میں ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت شارٹ ہے۔ وہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو سنا ہوگا، یہ صحابی بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو پہلے سے کوئی مکان طے نہیں تھا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے۔ اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو بتائیے ہمارے دل کی اس وقت آواز کیا ہوتی کہ کاش حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کو قبول کر لیں، میرے گھر میں آ جائیں، میں ان کا میزبان بن جاؤں، اور نہ اندر آئیں تو اپنا دروازہ کھلا رکھتے، کاش آپ کی ایک نگاہ میرے مکان پر پڑ جائے۔ کیونکہ ایمان والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق اتنا عظیم ہے کہ کوئی دوسری محبت دل میں نہیں ہوتی اتنی بڑی۔ اور صحابہ کی محبت آپ جانتے ہیں، صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے، اس کی مثالیں دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت صحابہ کے دل کیسے تڑپے ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کا یہ جذبہ نظروں میں تھا۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں میں فلاں گھر پر ٹھہروں گا، تو دوسرے صحابی کے دل کو افسوس ہوگا، دکھ ہوگا کہ حضرت میرے یہاں تشریف نہیں لائے، اور مسلمانوں کے دل کا خیال کرنا آپ نے بہت ہی اس کا اہتمام کرنے کو کہا ہے، تو اب کیسے کرتے؟ تو سیرت میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جس اونٹ پر آپ سوار تھے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں اس کی لگام چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں ٹھہرے گی میں وہیں اتروں گا۔ اب جہاں پر وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی تو دوسرے صحابہ اس کو دھکا دیتے تھے، اڑ جاؤ اڑ جا اڑ جا۔ محبت کی بات یہی ہوتی ہے، تو وہ اٹھ کے چل دیتی تھی۔ آخر میں جس مکان کے دروازے پر وہ اونٹنی آ کر رکی اور وہاں سے پھر ہلی نہیں، وہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے خوش نصیب صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے مدینہ میں، اور ایسی پھر میزبانی کا حق ادا کیا۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو ان کے واقعات آپ پڑھیں گے، جس محبت اور شان سے میزبانی کا حق ادا کیا ہے۔ وہ تفصیل وہاں ہے، مجھے تو چھوٹی سٹوری سنانی ہے جو آگے انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟
फरमाया जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा इज़नी व अवजिज़, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप नसीहत फरमाइए, वाज कीजिए, मगर बहुत शॉर्ट कीजिए। अगर हम होते तो मूड खराब हो जाता है। का ऐसा कहते हो जैसे ऑर्डर कर रहे हो, सुनना है तो सुनो। इमाम साहब कहेंगे मैंने हफ्ता भर तैयारी की है वाज की और तुम भाग रहे हो। ऐसा नहीं फरमाया, क्योंकि आपकी शान अजीब थी। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी शान बहुत अजीब थी, बहुत अजीब। खुद एक दफा फरमाया उअल्लिमुकुम कमा युअल्लिमुकुम आबाउकुम, ऐ लोगो मैं तुमको ऐसे सिखाता हूं तुम्हारे माँ बाप क्या ऐसा सिखाएंगे। और इस हदीस में आगे जो 3 जुमले फरमाए हैं वाकई वो ऐसे हैं कि जो बहुत हल्के हैं। जब ये फरमाया मैं तुमको ऐसे सिखाता हूं, माँ बाप भी ऐसा नहीं सिखाते, तो उसमें आगे 3 जुमले फरमाए। पहला फरमाया जब बैतुल खला जाओ तो बायां पैर दाखिल करो, ये मैं तुमको सिखाता हूं। दूसरी बात, जब अंदर पहुंचो तो तुम एनीहाउ नहीं बैठ सकते, बल्कि पहले देखो ला तस्तकबिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरुहा, ख्याल करना बैतुल खला में इस्तिंजा करते वक्त न तुम्हारा चेहरा किबला की तरफ हो न तुम्हारी पीठ किबले की तरफ। क्या ये मैं तुमको ऐसी छोटी बातें सिखाता हूं। और तीसरी बात बताई जब सफाई करो, टिश्यू इस्तेमाल करो, पाकी हासिल करो, तो दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना, बायां इस्तेमाल करना। तो इसको फरमाया मैं तुमको ऐसा ही सिखाता हूं, माँ बाप क्या ऐसा सिखाएंगे। वाकई आपकी शफकत थी, शायद कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं सिखाई। अब आदमी थूकता है कहीं, उसको भी सिखाया कि बाएं तरफ को थूको, नीचे कदम के नीचे थूको। आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी शान थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां भी उसी रहमत और शफकत का सबूत दिया। 3 जुमले 3 सेंटेंसेस हैं, ये बहुत छोटे बताए, लेकिन आपका कलाम कलाम होता है, उसमें उलूम का समंदर होता है। बस जवाब में चूंकि उस शख्स ने कहा मुझे एडवाइस कीजिए मगर वेरी शॉर्ट, तो आपने 3 जुमले में आए, और 3 जुमलों में 3 बहुत बड़े समंदर हैं उलूम के। शारहीन ने उन पर बहुत लिखा है। मैं तो सिर्फ वो 3 जुमले आपको सुनाता हूँ, उनका तर्जुमा बताता हूँ, और आपको याद हो जाए तो समझिए 3 हदीसें आपको याद हो गई। और आप जानते हैं इल्म हासिल करना कितनी बड़ी चीज़ है। आप ये 3 चीज़ें साथ ले जाएंगे, छोटे छोटे जुमले, और फिर घर में पहुंचाएंगे या किसी को सुनाएंगे, तो इल्म के फैलाने का आपको सवाब मिल जाएगा, हुसूल इल्म का सवाब मिल जाएगा। पहला जुमला जो फरमाया आपने, फरमाया इज़ा कुम्त फी सलातिका फसल्लि सलात मुवद्दइन, जब तुम नमाज शुरू किया करो, नमाज का इरादा तुमने किया, नमाज के लिए खड़े हो गए, तो ये सोच लिया करो अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज होती तो मैं इसको कैसे पढ़ता। गोया जो आजकल प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं जी कंसंट्रेशन नहीं है, तवज्जो नहीं है, ख्यालात आते हैं, वसाविस आते हैं, गोया उसका इलाज बता दिया। और वाकई इसमें उन्हीं लोगों को खिताब किया जो नमाज पढ़ने वाले हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब वही हैं जिन्होंने अल्लाह के फजल से नमाज अदा की। तो गोया नमाजी के लिए जुमला बता दिया कि नमाज शुरू करो तो ये तसव्वुर करो अगर ये मेरी आखिरी नमाज होती तो कैसी होती। तो अब मैं सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ूं तो कैसे, अलहम्द शरीफ मेरी हो तो किस तरह की, सुबहान रब्बियल अज़ीम मैं कहूँ तो कैसी, सुबहान रब्बियल आला मैं कहूँ तो कैसी। यहाँ तक कि सलाम तक ये तवज्जो रहे कि मेरी ये नमाज ऐसी हो जाए तो वाकई वो नमाज जैसी होगी। हमारे उस्ताद भी थे, शेख भी थे, हज़रत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे जब इस तवज्जो से नमाज पढ़ो शैतान चैन से नहीं बैठने देगा, वो फिर अटैक करेगा, कभी इधर से कभी इधर से कोई ख्याल ले आएगा, लेकिन तुम फौरन वापस हटाया करो और सलाम फेरने के बाद उससे कह दिया करो, वो कहेगा तुम्हारी नमाज नहीं, तुमने तो बहुत इधर सोचा,
तुम कहा करो मैंने अल्लाह का हुक्म पूरा किया, मेरी नमाज तो हो गई, तुम सोचते रहो। क्या इसमें शैतान का मुकाबला है। और जब आदमी ऐसा करता है, ये प्रैक्टिस की चीज है। और ये इंग्लिश वाले इडियम्स फ्रेजेस पढ़ाते हैं, जब हम लोग जब पढ़ते हैं स्कूलों में तो वहां पढ़ाते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी कोशिश करता है, इसमें भी तवज्जो पर थोड़ा सा ध्यान देता है तो काबू हो जाता है। तो पहला जुमला ये, इज़ा कुम्त फी सलातिका फसल्लि सलाता मुवद्दइन, जब नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसा तसव्वुर करो अगर ये मेरी आखिरी नमाज होती तो कैसी होती, इस तवज्जो से पढ़ो, अच्छी नमाज हो जाए। दूसरा जुमला आपने फरमाया, वला तकल्लम बिकलामिन ताज़िरु मिन्हु गदन, अपनी जुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकालो जिसकी वजह से कल को माफी मांगनी पड़े। जुमला कह तो दिया, बाद में सॉरी कहना पड़ा, कल कहना पड़ा, अम्मा जान मैं आपके सामने जोर से बोला माफ कर दो, अब्बा जान मैं तेज बोला, मैंने गुस्सा किया माफ कर दो, दोस्त से कहा बस यूं ही निकल गया माफ कर दो। इसलिए कि हमारे यहाँ जुबान को इस्तेमाल करने में 3 तरह की पाबंदियां हैं। पहले ये है कितने जोर से बोलोगे, इसकी भी शरीयत में पाबंदी है। इसलिए सूरह हुजरात में है कि ए ईमान वालो जोर से मत बोलो उस तरह जैसे आपस में जोर से बोलते हो जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो। हर गुनाह की सजा अलग अलग है, और इस गुनाह की सजा अगर हजरत के सामने तुम लोगों ने जोर से बोल दिया तो उसकी सजा है अन तहबता आमालुकुम, तुम्हारे नामे आमाल में जितने आमाल होंगे उन पर क्रॉस डाल दिया जाएगा। ये इतना बड़ा जुर्म है। तो जैसे वहां का अदब है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह माँ बाप के सामने कोई चीख कर नहीं बोल सकता, इजाजत नहीं है बहुत जोर से आदमी चीख कर बोले। आज का जवान माँ के सामने चीखता है, मेरे अब्बा को यूं कहना, डांट के बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ इस पर पाबंदी है। जुबान आवाज कैसी हो इस पर भी पाबंदी है। दूसरी पाबंदी है वर्ड कैसा हो, इसलिए वो आपने बार बार सुना होगा, अभी इमाम साहब ने भी उसी सूरत की आयतें पढ़ी माशाल्लाह, वहीं पर खत्म की जहां आगे है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, जब तुम्हारा बाप बुढ़ापे में पहुंचे, जब तुम्हारी माँ बुढ़ापे में पहुंचे, अब उनके सेंसिटिव दिल का बहुत ख्याल करना। अब ऐसा जुमला नहीं कहना जो उनके दिल पर चोट पड़े। अब ये बुढ़ापे में बहुत नाजुक हालात में है, तुम इसके सामने कोई वैसा वर्ड नहीं कह सकते। तो कहा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, अब अपने बूढ़े बाप बूढ़ी माँ के सामने उफ नहीं कहना। उफ का तर्जुमा उर्दू वाले करते हैं हूं, अपने बूढ़े बाप और माँ के सामने हूं नहीं कह सकते, तेज बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये फरमाया। फिर झूठ बोले आदमी, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं, गीबत करे आदमी, उसकी तो गुंजाइश ही नहीं। तो इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तकल्लम बिकलामिन ताज़िरु मिन्हु गदन। दूसरी नसीहत फरमाई कि अपनी जुबान से कोई ऐसी बात मत निकालो कल को जिसकी माफी मांगनी पड़े, चाहे इस दुनिया में चाहे आखिरत में। मसलन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते कोई बात बोल दी तो कल अल्लाह से माफी मांगनी पड़ेगी। गुंजाइश वही है आदमी तौबा करता रहे, माफी मांगता रहे, लेकिन हजरत ने फरमाया पहले से ही इसको काबू करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो। बोलने से पहले सोचो आपकी जुबान से कोई ऐसी बात न निकले जिससे आपको कल माफी मांगनी पड़े। 2 बातें होगी। और तीसरी नसीहत जो आपने फरमाई वो फरमाया व अजमिल इयासा मिम्मा फी ऐदिन नास, लोगों के पास जो कुछ है तुम उसकी तरफ अपने दिल को माइल मत करो, उनसे उम्मीद कायम मत करो। अगर उनके पास कुछ है भी और तुमने कभी उनकी तरफ तवज्जो की भी और तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई तो ये मत समझो इसकी खता है, बल्कि ये समझो अल्लाह ने इसके दिल में इस वक्त नहीं डाला। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारे दिलों का आधा बोझ हल्का हो जाए।
बहुत बार दिल में मलाल होता है, चचा के पास गया था उसने ये मदद नहीं की, भाईजान के पास गया था उसने ये उस वक्त हेल्प नहीं की, फलां पड़ोसी के पास गया था, दोस्त के पास गया था, उसने उस वक्त ये सपोर्ट नहीं दिया। अगर ये जुमला हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी समझ में आ जाए और ये जहन में आदमी को बैठ जाए ये बात कि हर कोई आदमी जो कुछ उनके पास है वो तभी हमको सहारा दे सकता है जब अल्लाह उसके दिल में डालेगा। खुद उसके इरादे की बात तो उसके सवाब के कमाने और न कमाने की है, लेकिन होगा तब जब अल्लाह उसके दिल में डालेगा। तो फरमाया ऐसा करने से हमारे दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। कहा पहले से ही ऐसा कर लो। लोगों के पास या तो माल होता है या ओहदा होता है, कोई ताकत होती है जिससे वो मदद कर सकते हैं। फरमाया व अजमील इयास, अपने आप को यकसू कर लो, मायूस कर लो, मिम्मा फी आइदिन नास, उन चीजों से जो लोगों के हाथों में हैं। फिर उनको तो दी यह हिदायत कि आप लोगों की मदद करो। हदीस में है कि जब मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की मदद में कोशिश में होता है, अल्लाह खुद उसकी मदद करता है। उनको तो यह हुक्म है। गरीब को कहा मांगो मत, लेकिन मालदार को कहा तुम देते रहो। हर एक आदमी को अपना अपना फर्ज समझा दिया। हमारे हजरत फरमाया करते थे, आज की दुनिया में लोगों ने दूसरे का हुक्म सुनाना तो सीखा, अपने ऊपर क्या हुक्म है वो नहीं सीखा। फरमाते थे इसलिए गरीब मालदार को याद दिलाता है कि तुम्हें खर्च करने का हुक्म मिला, और मालदार गरीब से कहता है इस्लाम में मांगने से मना किया गया। तो एक दूसरे को हुक्म याद दिलाता है, लेकिन अपने ऊपर क्या हुक्म है वो किसी को याद नहीं रहा। तो यहाँ फरमाया कि आप अपने आप को लोगों के हाथ में जो कुछ है उससे यकसू कर लो, उनसे कोई उम्मीद कायम मत करो, क्योंकि सब लोगों के दिल अल्लाह के कब्जे कुदरत में। तब मैं रिपीट करता हूँ तीनों चीजों को। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, एक आदमी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और सवाल किया, हजरत मुझे नसीहत फरमाइए और बहुत मुख्तसर नसीहत फरमाइए। आपने तीन चीजें बयान की। पहली चीज ये कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ लिया करो जैसे कोई अलविदाई नमाज पढ़ता हो। दूसरी बात, अपनी जुबान से कोई ऐसा कलाम मत निकालो जिस कलाम से कल को माफी मांगनी पड़े। और तीसरी बात, लोगों के हाथों में जो कुछ है उससे अपने आप को यकसू कर लो, कोई उम्मीद इंसानों से कायम मत रखो, बल्कि अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, हमने अपने गुनहगार हाथ आपके सामने फैला दिए। अल्लाह, आपने यह हाथ पाक अता फरमाए थे, हमने गुनाहों से इनको नापाक कर दिया। आपने जुबान पाक अता फरमाई थी, हमने इनको भी गंदा कर दिया। अल्लाह, आप ऐसी रहमत हम पर नाजिल फरमाएं जो हम फिर से पाक हो जाएं। या अल्लाह, हमारे दिलो दिमाग को पाक फरमा दीजिए, हमारे क़ुलूब को पाक फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें पाक बरकत वाली रोजी अता फरमा दीजिए, वसअत वाला रिज़्क अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें हलाल बरकत वाली रोजी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे कर्जों को गैब से अदा फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे घरों में जो बालिग बच्चे बच्चियां निकाह की उम्र को पहुंच चुके, अल्लाह अपने खजाने से उनके निकाहों में बरकत अता फरमा दीजिए, उनको अच्छे नेक साले जोड़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, सुन्नत के मुताबिक निकाह की तौफीक अता फरमा दीजिए। जिनके निकाह हुए उनकी ज़िंदगियों को खुशगवार बना दीजिए, उनको औलाद साले नसीब फरमाइए। या अल्लाह, हमारे भी जिसको नेक साले औलाद नसीब हुई हैं उनको वालिदैन की ठंडक बना दीजिए, और जिनके इस्लाह की ज़रूरत है उनकी गैब से इस्लाह के असबाब पैदा फरमाइए। या अल्लाह, जो भाई दुआओं के लिए कहते हैं, लिखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, उन सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाइए। इस मजलिस में जो हाजिर हैं सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाइए। या अल्लाह,
ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بڑی قربانیاں ہم پر دی ہیں، ان غریبوں میں جو حیات ہیں ان کی زندگی کو آسان بنا دیجئے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، ان کی قبر میں کوئی سختی ہو اس کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے، عالم اسلام کو عزت نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو ہدایت اور قوت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم